Good morning, students. Today we are going to take up the summary and story of a very important chapter named Bholi. This is from the supplementary reader book, and I can say on the basis of my experience that this is very important chapter from board examinations point of view. So try to listen to this very carefully so that you come to know what is given in the chapter, and later on when we read text you may not face any difficulty. That's why today I am telling you the story and background of the chapter. बच्चों, ये जो स्टोरी है जिसका नाम, इस चैप्टर का नाम भोली है, ये के अब्बास ने इस चैप्टर को, इस लेसन को लिखा है. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यानी इस बुक में दो चैप्टर, एक नेकलेस थोड़ा टाइम पहले मैंने करवाया था और दूसरा ये भोली, ये दोनों लेसन जो हैं दे आर एवरग्रीन लेसन and are very important from board examination point of view. So you have to be very clear while reading it. So this chapter Bholi, it contains the story of a girl Bholi. Her real name was Sulekha. She is among the 4 girls and 3 sons of her father named Ramlal. Ramlal was serving under Tahsildar in revenue department in those days. All the other children of Ramlal were very quick, very smart, and they had no difficulty in studying or marrying. But when we come to this girl, the youngest one, Bholi, she was no doubt, she was also beautiful for 2 years. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. With the result, her face was covered with smallpox marks, and also she developed an habit of stammering. Stammer समझते हो बच्चों? हकलाना. जब हम वर्ड्स को बोलते हुए हिचकते हैं, झिझकते हैं, हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़बान है, वो काम नहीं करती, उसको हम स्टैमर करना बोलते हैं. जब भी कोई इससे बात करता था तो ये स्टैमर करने लग जाती थी. इसके जो पापा थे रामलाल, वो ये समझते थे कि भाई हमारे लिए तो ये जो बच्ची है एक तरह से सी इज़ जस्ट लाइक डम्ब काव. डम्ब काव मतलब गूंगी जो गाय होती है. शी वाज जस्ट लाइक ए काव एंड दैट टू डम्ब, जो कुछ बोल ना सके. और वो उसको इसी तरह से ट्रीट करते थे इस लड़की को. औरों को नए कपड़े पहनने को मिलते थे, सारी चीज़ें अच्छी मिलती थी, लेकिन इस लड़की को, भोली को, अपनी बहनों के छोड़े हुए कपड़े, उतरे हुए कपड़े इसको पहनाए जाते थे. कोई भी चीज़ नई इसको नहीं मिलती थी और सारे इसमें परिवार में, फैमिली में कोई इसको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करता था. दैट वाज द रीज़न. Now what happens, in their village a government school is opened for girls, and Tahsildar came to do the opening ceremony of that school. Because her father was working under Tahsildar, so he had no way
but to attend that ceremony. He went to the school, and when the school was opened, when the opening ceremony was done, Tahsildar asked him, Mr. Ramlal, you should make the beginning. You should bring your girls to the school. आप अगर पहल नहीं करोगे तो दूसरा कौन पहल करेगा? अब रामलाल के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई कि वो अपने बॉस को, अपने सर को मना कैसे करे, उसको मना कैसे करे, ये उसके बस की बात नहीं थी। तो जब घर में आके उसने बताया कि भी भोली को हम स्कूल में भेजेंगे, तो सब बड़े हैरान हुए। इवन जो भोली थी वो बेचारी डर गई, वो झिझकती थी, उसे नहीं पता था स्कूल क्या होता है, स्कूल कैसा होता है, कुछ नहीं उसको मालूम था। लेकिन जब उसको बतलाया गया कि भाई तुम्हें नए नए कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, नई यूनिफॉर्म मिलेगी, तो वो लड़की तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। अब उसको अच्छी तरह से नहलाया गया, बाल वाल को ठीक तरह से कॉम किया गया और उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, और इस तरह से उस लड़की को स्कूल में भेज दिया गया। When she was sent to the school, she was looked after by her female teacher. When her female teacher asked her the name, Bholi started stammering. She could not tell her name in one go, in one effort. This made all other class members laugh. They started making fun of her. Bholi felt awkward very much कि what to do. But her teacher was really very helping, and she somehow or the other, she coaxed her, she told Bholi not to feel awkward, not to feel scared, but simply to tell her name. She again asked her to tell her name. Bholi tried her name, although she stammered, but finally she was able to tell her name Bholi, although her real name was Sulekha. But since the entire family used to address her with the name of Bholi, so her name was known as Bholi. In the school, her ma'am helped her very much. When other children were making fun of her, her teacher, her ma'am, really helped her. She told the class not to make fun of that girl. She told all other girls not to be funny, not to be hurting for the girl. Rather, she instructed all the class to be helpful and to be nice to the girl, Bholi. In this way, Bholi started reading. Bholi started learning. This was something new for her. बच्चों, ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ही नया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन भोली धीरे धीरे जब जैसे पढ़ती जा रही थी, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता जा रहा था। हालांकि जब वो घर पे जाती थी तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता था, लेकिन अब ये नहीं मालूम था उनको कि भाई भोली धीरे धीरे बड़ी होने लग रही है और समझने लगी है। अब हालांकि उनके जो पेरेंट्स थे उनका उनके साथ वही व्यवहार होता था। इवन यहाँ तक मैं कहूँगा कि उसकी जो मदर थी, वो मदर उसकी, कम से कम मदर को तो अपनी बच्ची के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए, लेकिन बच्चों वो सिंपैथेटिक नहीं थी। वो बार बार कोशिश ये करती कि उसे उस लड़के के लिए कुछ ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, उस लड़की के लिए कोई उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करनी पड़े। जो घर में बचा खुचा होता वो उसको खाने को दे देती, जो कपड़े उतरे पुराने किसी के होते वो उसको पहनने के लिए दे देती।
लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी लड़की अब स्कूल में जा रही है और स्कूल में जाके वो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रही है। फिर एक दिन जैसे ये लड़की बड़ी होने लगी, मैंने बताया था बच्चों राइट इन द वेरी बिगनिंग कि उनके बाकी सिस्टर्स को दे वर गुड लुकिंग, दे वर स्मार्ट, उनको मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन व्हेन इट केम द टर्न ऑफ दिस गर्ल भोली, उसकी परिवार में चिंता थी, उसके फादर को चिंता थी कि अब क्या होगा। उसके फादर की निगाह में एक आदमी था जो ग्रोसर था, यानी जो दुकानदारी का काम करता था। हालांकि उम्र में वो भोली के फादर की ही एज का था, लेकिन एक तो वो रुपए पैसे बहुत थे उसके पास, काफ़ी अच्छा उसके पास मकान था, काफ़ी बड़ी उसके पास दुकान थी, तो उससे वो इम्प्रेस रहता था। अब उन्होंने सोच समझ के विचार किया घर में, किसने? उसके भोली के पापा रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर सलाह की कि हमें क्या करना चाहिए। तो भोली की माँ कहती है कि भाई उम्र है क्या, थोड़ी उम्र ज़्यादा है ना, पड़ी रहेगी, लेकिन लड़की तो वहाँ मौज करेगी, सब कुछ उनके पास है, अच्छी बात है। अब उन्होंने विचार बना लिया कि भाई हम उस दुकानदार से बिशंबर, जो उम्र में बड़ा था काफ़ी, भोली के फादर की एज का था, हम उसके साथ शादी करके अपने जान छुड़ा लेंगे, अपना पिंड छुड़ा लेंगे। और वो इसलिए भी तैयार हो गया रामलाल शादी करने के लिए क्योंकि बिशंबर ने कोई डावरी, कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी, तो उसके लिए अच्छा था। उसकी शादी कर दी गई, फिक्स कर दी गई शादी। और जिस दिन मैरिज के लिए बिशंबर आया घर पे, तब तक उसने भोली को देखा नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि भोली के चेहरे पे इस तरह से चेचक के दाग हैं, ये उसको मालूम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पहली शादी के टाइम जब उन्होंने पहली बार उसका चेहरा देखा, तो जो ये अपना बिशंबर है वो चिढ़ गया। वो कहने लगा नहीं 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 भाई नहीं, मैं तो इसके साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसी लड़की के साथ। जब वो कहने लगे भाई अब तो शादी फिक्स हो गई, अब तो हमारी इंसल्ट होगी, अब तो शादी आप करो, कहता है नहीं नहीं, आपने मुझे बताया नहीं इसकी रियलिटी के बारे में, मैं अब ये मैरिज इसकी नहीं करना चाहता, कर सकता। आखिरकार उन्होंने डाउरी की डिमांड रख दी कि भाई मुझे इतने 45,000 मुझे पैसे मुझे अगर मिलेंगे तो मैं शादी करूं। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि भाई मैं क्या करूं। अब उसके फादर किसी तरह तैयार हो गए, भाई चलो मैं कहीं से अरेंज करूंगा, कुछ करूंगा और आपके लिए मैं आपको दूंगा। वो इसमें थे जब उसके फेरों का टाइम आया, उसके साथ वहाँ पे भोली को बुलाया गया। और भोली ने जब सुना कि भाई ये आदमी तो रुपयों का लालची है, इस आदमी को तो दहेज चाहिए, तो वो जो लड़की थी सी बिकेम एडमेंट, कहने लगे भाई मैं ऐसे आदमी से शादी कर ही नहीं सकती जो दहेज का लॉबी हो। इसका जो परिवार था वो सारा का सारा परिवार बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, भाई तुम क्या कर रही हो, ये लड़की कैसे बोल रही है। लड़कियां अपने बारे में नहीं कुछ कहती, जहाँ पर उनके लिए उनके पेरेंट्स ने जो फैसला कर लिया उसे उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट, वो लड़की अड़ गई, कहते नहीं ऐसे से तो मैं शादी नहीं मैं करूँगी, इससे अच्छा मैं कुंवारी ही बैठी रहूँगी। आखिरकार बिशंबर को इंसल्टेड होके, बेइज्जत होके वहाँ से वापस लौटना पड़ा। और जब वो चली गई तो परिवार में एक तरह का कोहराम मच गया कि भाई ये भोली तुमने क्या किया, तुम्हारे पापा की बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो उसने एक ही बात कही अपने परिवार को कि पापा डोंट वरी, मैं शादी करूँगी नहीं,
जब उससे पूछा गया बेटा फिर तुम क्या करोगी, शादी नहीं करोगे, लड़कियां तो शादी करके जाती हैं, वो ये कहती हैं कि मैं हमेशा पापा आपके साथ रहूँगी और जिस स्कूल में मैं आजकल पढ़ने जाती हूँ एक दिन मैं उसी स्कूल में टीचर बन के दिखाऊँगी। अब उसने ये बात कह दी तो उनके घर वालों को बड़ी खुशी हुई, भाई चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से उस लड़की ने अपने सामने अपनी लाइफ में जो उसके ये प्रॉब्लम आई थी उसका उन्होंने अच्छी तरह से सामना किया और बिशंबर जैसे लालची आदमी को जो रुपए पैसे के दम पे उसको खरीदना चाहता था उसने उसका बहिष्कार कर दिया, अपनी ज़िंदगी से उसको दूर कर दिया। तो बच्चों ये कहानी है भोली की कि ये जो स्टोरी है दिस इज़ अ वेरी वेरी टचिंग स्टोरी, क्योंकि बाद में चल के वो लड़की ने मेहनत की, उस स्कूल में पढ़ा और उसी स्कूल में जैसा कि उसने बोला था वो मैडम बनी, उसी स्कूल में वो टीचर बन गई और उसका जो परिवार था बहुत ज़्यादा खुश था। तो बच्चों इसमें उसकी टीचर का जो रोल है सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा रोल था। यानी होता आमतौर पे क्या है, बच्चे का देखभाल लड़कियों का खास तौर पे उनकी माएँ करती हैं, लेकिन इस केस में बच्चों मामला अलग था। उसकी माँ ने कभी उसकी परवाह नहीं की, उसकी माँ ने भोली के लिए कभी कोई एफर्ट नहीं की, कभी उसको यानी किसी तरह से मदद नहीं की। लेकिन वो कहते हैं भगवान उनकी भी मदद करता है जिनका कोई नहीं होता। तो लकीली इस लड़की को इनके स्कूल में, इनके गांव में लड़कियों का स्कूल खुल गया और लड़कियों के स्कूल में ना चाहते हुए भी इनके फादर को इसको स्कूल भेजना पड़ा। और जिस दिन से उसको अपनी मैडम मिली है, नई टीचर मिली, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और उस टीचर ने उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौटाया और धीरे धीरे उसकी जो स्टैमर करने की जो हैबिट थी बच्चों, वो हैबिट भी चली गई। अब जो ये भोली है ये धारा प्रवाह भाषा में बोल सकती थी, अब इसको कोई झिझक नहीं होती थी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आई होप you would have liked it, and in our next meeting, whenever we meet, we shall read the text of this chapter. Thank you.